ओके, तो आज चैप्टर हम अब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया, उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे 8.3.11 formation of the complex compounds. So transition elements can form such complex compounds. तो उसका रीजन मैंने चैप्टर नंबर 9 में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, याद हो तो. Complex compounds are those in which the metal ions bind a number of anions or neutral molecules, giving the complex species with the characteristic properties. Some examples are given below. Okay, and the chemistry of the complex compound is dealt with the detail in chapter number 9, and the transition methods from a large number of complex compounds. This is due to just a minute. The comparatively smaller size, high ionic charges, and the availability of the d orbitals. तो ये पॉइंट हो चुका है अपना. ओके, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज. चलो तो पहले ध्यान से देखो ये. So transition metals and their compounds can act as a complex compound. क्यों? तो इसका रीजन ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स सपोज हमने यहाँ पे एक क्रिस्टल लिया है, एक पार्टिकल लिया है, उसमें बहुत सारे एटम्स हैं. तो यहाँ पे ये सब सपोज कोई भी एक ट्रांजिशन, सपोज Fe है, तो आपको याद हो तो हैबर प्रोसेस में कौन सा कंपाउंड मिलता है हैबर प्रोसेस से, मतलब किसकी प्रिपरेशन? एनीवन? हैबर प्रोसेस से किसकी प्रिपरेशन होती है? गुड, वेरी गुड. अमोनिया की. चैप्टर 11th स्टैंडर्ड में भी हो गया है, 9th चैप्टर में हाइड्रोजन वाला चैप्टर था उसमें. ओके, तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर टू गिव अमोनिया. तो यहाँ पे Fe एज अ कैटलिस्ट हम यूज करते हैं. ओके, अगेन वी आर यूजिंग कैटलिस्ट. ओके, तो Fe पाउडर यूज होता है. तो Fe पाउडर पे होगा क्या, तो चलो वो देखते हैं हम. तो Fe पाउडर में ये होगा कि जब भी रिएक्शन होगी तो ये जो Fe एटम्स होते हैं ना, उसकी सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो उनकी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक होती है. कौन सी? पैरामैग्नेटिक. क्यों पैरामैग्नेटिक? क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया है कि whenever unpaired electrons are present, then these are the paramagnetic substances. Okay, तो paramagnetic substances की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. So these electron will attract the reactant molecules. That's why the Fe surface will be the meeting point of the nitrogen and hydrogen to be reacted. Okay, so that they will attract the nitrogen and hydrogen molecule and the reaction becomes faster. तो बताइए ना हमने कैटलिस्ट का मतलब क्या है ये. ओके, साथ में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं. चलो वन बाय वन हम देखेंगे. इतना तो क्लियर हो गया होगा सबका. ओके, जस्ट अ मिनट. यस केशा, पढ़ो ये पॉइंट. कैटालिटिक प्रॉपर्टीज फास्ट. The transition metals and their compounds are known for their catalytic activity. This activity is ascribed. Just a minute, just. Yes, continue. To their ability
to adopt the multiple oxidation states and to form complexes. Vanadium oxide in contact process finally divide iron in Haber's process, and nickel in catalytic hydrogenation and are some of the examples. Catalysts at a solid surface involve the formation of bonds between reactant molecules and atoms on the surface of catalyst. This has the effect of increasing the concentration of the reactants at the catalyst surface and also weakening of the bonds in the reacting molecules. The activation energy is lowering. Also, because the transition metals ions can change their oxidation state, they became more effective as catalysts. For example, iron catalyzes the iron reaction 3 between iodide and per per sulfate sulfate ions. ions. ये जो S2O8 है ना, that is the per sulfate ion. तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया है इसका. I माइनस अगर S2O2 माइनस का रिएक्शन करेगा तो I2 और SO4 माइनस बनाएगा, तो उसमें Fe3 प्लस ऐसा कैटलिस्ट यूज होगा. वो ड्यूरिंग द रिएक्शन चलो उसका रिडक्शन हुआ देखो +3 to +2, ओके, जिससे आयोडीन प्रोड्यूस हुआ और ये जो Fe2 प्लस है फिर से वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और S2O2 माइनस को कन्वर्ट करेगा SO4 माइनस में. तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी इन प्रेजेंस ऑफ Fe3 प्लस आयन. सो हियर Fe3 प्लस आयन एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट. ओके, चलो तो थ्योरी आज की कंप्लीट. नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल कंपाउंड. चलो अब वर्ड इंटरस्टिशियल क्या है वो हम देखते हैं. तो ध्यान से देखना. सपोज वी आर टेकिंग हियर क्रिस्टल इन विच एटम्स आर टाइटली बाउंड. वैसे इंटरस्टिशियल साइट तो पता ही है सबको. पता है किसी को इंटरस्टिशियल साइट किसे कहते हैं? इंटरस्टिशियल साइट यस, इंटरस्टिशियल साइट किसे कहते हैं? इंटरस्टिशियल वॉइड, the gap between the atoms, that is our interstitial site. Suppose तो ये देख लो, ये this one is known as interstitial site. ओके, तो इंटरस्टिशियल साइट पे स्मॉल साइज वाले कौन कौन से? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. सॉरी, बोरॉन, नॉट ऑक्सीजन. हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और बोरॉन, ऐसे नॉन मेटल्स ऐसे इंटरस्टिशियल साइट पे सेट हो जाते हैं. अगर हाइड्रोजन ज्वाइन हुआ तो हाइड्राइड, कार्बन ज्वाइन हुआ तो कार्बाइड, नाइट्रोजन ज्वाइन हुआ तो नाइट्राइड, बोरॉन ज्वाइन हुआ तो बोराइड. अब मेटल्स में बॉन्ड होता है मेटालिक. चलो ये तो पता ही होगा सबको, मेटालिक बॉन्ड होगा इसमें. ओके, तो मेटालिक बॉन्ड में अट्रैक्शन किन के बीच में होता है? तो एटम कर्नल और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन. अब ये देखो, जब नॉन मेटल्स होते हैं तो नॉन मेटल्स हैव ग्रेटर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स. तो क्या होगा कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द नॉन मेटल एट इंटरस्टिशियल साइड, द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बिकम स्टेबलाइज. मतलब वो स्टेबल हो जाएंगे एक जगह पे.
जिससे क्या होगा कि इजिली वो बॉन्ड इजिली, इससे क्या होगा, मेटेलिक स्ट्रॉन्ग ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिससे इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई, ओके, प्योर मेटल से इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वो बहुत हार्ड हो जाता है। कोई भी सब्सटेंस सॉफ्ट कब होगा कि जब इनके बीच का ये जो गैप होगा ना वो ज्यादा होगा, तो अब वो गैप भी फिलअप हो गया विद द नॉन मेटल्स, इससे क्या हुआ, वो सब हार्ड हो गए एंड सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस, मतलब वहां तक वो पहुंच गए, दे रिटेन द मेटेलिक कंडक्टिविटी, ओके। इससे जब ये नॉन मेटल्स हो तो इससे क्या होता है कि उनकी मेटेलिक कंडक्टिविटी बढ़ जाती है एंड दे आर केमिकली इनर्ट, उनकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। सो दीज आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इनको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या है कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिक्स्ड नहीं होता है। देखो TiC, क्योंकि Ti और कार्बन दोनों का रेशियो 1:1 है, Mn4n मतलब 4:1, Fe3H 3:1। फिर उसके बाद देख लो ध्यान से 0.56 लिखा है, उसका मतलब क्या है पता है कि सपोज V हमने 1 लिया तो उसके सामने हाइड्रोजन होगा 0.56, ओके। मतलब सपोज हमने 100 वेनेडियम एटम्स लिए ना, तब जाके हाइड्रोजन के 56 एटम्स मिलेंगे। 1:56 का ऑर्डर मतलब पता चल गया होगा, ओके। तो ये जो 1:56 है ना, ये एक्सप्लेन करता है। अच्छा आगे, तो 0.56 का मतलब यही हो गया, तो 100 के सामने 56 एटम्स हो गए, क्योंकि हर एक जगह पे एटम है ही ऐसा हम नहीं बोल सकते, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट वन, तो ये हुए अपनी फॉर्मेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ओके। ओके चलो, तो अब ऋषित पढ़ो। ऋषित, अरे हाँ शायद इसका माइक ऑन नहीं है ना, ओके। विश्व, चलो पढ़ो, फॉर्मेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। Yes, sir. दिख रहा है ना वैसे तो, चलो फास्ट। Inter interstitial compounds are those which are formed when small atoms like H, C, or N are trapped inside the crystal lattices of metals. They are usually non-stoichiometric and are neither typically ionic nor covalent. For example, TiC, Mn4n, Fe3H, VH0256, and TiH just a minute, 1.7. just a minute, just a minute। 1.7 VH 0.56, 0256 Okay. नहीं है, डॉट है बेटा। And TH1, TIH 1.7, etc. The formulas quoted do not, of course, correspond to any normal oxidation state of the metal. Because of the nature of their composition, these compounds are referred to as interstitial compounds. The principal physical and chemical characteristics of these compounds are as follows. First, they have high melting points, higher than those of pure metals. Second, they are very hard. Some borides approach diamond in hardness. Third, they retain metallic conductivity. And fourth, they are chemically inert. ओके चलो, नेक्स्ट आया एलॉय फॉर्मेशन। यस युग,
पढ़ो चलो डायरेक्टली। ओके, इजी है इसलिए, और कुछ वर्ड सेकंड चैप्टर के है इसमें। यस योग नहीं है ना? कोई बात नहीं, ध्रुवी सोनी पढ़ो चलो। Yes, sir. And alloys is a blend of metals prepared by mixing the components. Alloys may be homogeneous solid solution in which the atoms of one metal are distributed randomly among the atoms of other. Such alloys are formed by atoms with the metallic radii that are within about 15% of each other. Because of similar radii and other characteristic of transition metal, alloys are readily formed by these metals. The alloys so formed are hard and have often high melting points. The best known are ferrous alloys, chromium, vanadium, tungsten, molybdenum, and manganese are used for the production of variety of steels and stainless steel. Alloys of transition metal with the non-transition metal such as brass, copper, zinc, and bronze, copper, tin are also considerable industrial importance. ओके, वैसे एलॉय फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि एटम्स को मतलब एलिमेंट्स को हम कंबाइन करेंगे, और उसके लिए एक कंडीशन है कि उनके जो एटॉमिक रेडियाई है ना, उनका डिफरेंस 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है पता है कि सपोज एक का 100 पिकोमीटर रेडियाई है एक एलिमेंट की, तो जो भी हम मिक्स कर रहे हैं उसकी 115 से ज्यादा या 85 से कम नहीं होनी चाहिए, तभी वो मिक्स हो पाएंगे, तभी आपको होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा। तो याद हो तो आप ये सेकंड चैप्टर में पढ़ लिए आपने, और कौन से टॉपिक में पढ़ा है आपने? सॉलिड सॉल्यूशन में। और उसमें मैंने बताया था कि दो सॉलिड को जब हम कंबाइन करेंगे तो आपको एलॉय मिलेगा, और वो जो एलॉय होगा वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। होमोजीनियस मतलब वो ऐसे मिक्स्ड होंगे कि आप फिर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये चलो ये Fe का आइटम है या Cu का आइटम है। सिमिलरली ये जो एलॉयस क्यों बनाना पड़ता है, तो अपने घर पे जो भी स्टेनलेस स्टील होता है आपको पता होगा, तो ये जो स्टेनलेस स्टील है वो बरसों तक उसको कुछ नहीं होता होगा, क्योंकि इट्स एन एलॉय ऑफ आयरन तो है इसमें, लेकिन क्रोमियम, वैनेडियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, मैंगनीज, ओके, बहुत सारे एलिमेंट्स का मिक्सचर है। कार्बन भी इसमें होता है, ओके, जिससे वो हार्ड बन जाता है, अगर ज्यादा करे तो फिर वो ब्रिटल हो जाता है। तो मतलब जो स्टेनलेस स्टील है वो बहुत मेहनत से बनाया है उन्होंने, और ऐसा बनाया है कि उनको फिर एक बार बनाने के बाद उनको कुछ होता ही नहीं है। तो उसका रीजन है ये, क्योंकि जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस 15% से ज्यादा नहीं होता है, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके ऑलमोस्ट सेम होती है, दैट्स व्हाई। ओके, तो आज हमने 3 टॉपिक्स लिए भी, इंटरस्टिशियल, एलॉय और ऊपर कैटालिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, और उसके बाद फिर ये एग्जांपल वाला क्वेश्चन चलो वो कर देना, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको कर देना है। ओके, चलो अब ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो आयंस ये आपको यहाँ पे दे दिए हैं, उसमें 2 दिए हैं। फर्स्ट इज द K2Cr2O7, और दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट। तो चलो आज का हम लेक्चर रख रहे हैं डेडिकेटेड टू अवर बोर्ड। तो बोर्ड में ये K-MnO4 वाली थ्योरी वो है थ्योरी, ओके। K2Cr2O7 उन्होंने निकाल दी है, लेकिन जीनीट के लिए उसका फंडामेंटल हम कर देंगे, लेकिन वो आज नहीं। तो आज अभी हम ले रहे हैं यहाँ पे K-MnO4 वाली थ्योरी। ओके, चलो ध्यान रखो, K-MnO4 it can be prepared by the fusion of MnO2 and then KOH या तो फिर KNO3। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज KNO3, रिएजेंट इज KOH, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH, और फिर O2 गैस जैसे हम पास करेंगे, एट दैट टाइम वी आर गेटिंग पोटेशियम मैंगनेट। ओके, और इसका कलर है डार्क ग्रीन। ओके, और फिर ये जो K2MnO4 उसमें जो MnO4 2- आयन है उसका एसिडिफिकेशन करने से मतलब इसका डिस्प्रपोर्शनेशन होगा,
MnO4 1 माइनस मिलेगा और MnO2 दोनों मिल जाएंगे, एंड देन फाइनली वी आर गेटिंग KMnO4। सेकेंड इक्वेशन उन्होंने पूरा का पूरा बैलेंस नहीं किया है। ओके चलो, तो यहाँ पे देखो डायग्राम दिया है, फिर MnO2 fused with KOH oxidized with air or KNO3, then we are getting MnO4 2 minus manganate ion, and then it is electrolytic oxidation करेंगे in basic media, then we are getting MnO4 1 minus। दूसरा MnO2 मिलता है, लेकिन वो उसके ऊपर फोकस नहीं किया है, मेन अपना पर मैंगनेट आयन। तो याद रखना है MnO4 2 minus manganate ion, MnO4 1 minus per manganate ion, again MnO4 2 minus manganate ion, MnO4 1 minus per manganate ion। 11th में हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में जब हमने जीरो चैप्टर किया था, याद हो तो आपको, तो उस टाइम पे मैंने आपको डायरेक्टली ये आयंस के लिस्ट मैंने आपको बना दिया था। ओके चलो आगे। अब लेबोरेटरी में हम कैसे बनाएं, तो इसकी यहाँ पे प्रिपरेशन दी है आपको। चलो, तो Mn2 मैंगनीज 2 आयन, अगर इसका पेरोक्सो डाइसल्फेट आयन से याद हो तो ये है अपना पेरोक्सो डाइसल्फेट। पर ऑक्सो मतलब यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड है, बीच में ये जो आपको ओ डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है ना, दैट इज पेरोक्साइड बॉन्ड। ओके तो H2OH 2 माइनस है ये, तो Mn2 प्लस उसका रिडक्शन हुआ, सॉरी ऑक्सीडेशन हुआ, और H2OH 2 माइनस वो कन्वर्ट होगा SO4 2 माइनस में। ओके तो जिससे आपको मिलेगा पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म्स द डार्क पर्पल कलर ऑलमोस्ट ब्लैक क्रिस्टल्स विद आर आइसोस्ट्रक्चरल विद KClO4। आपको याद रखना है KMnO4 का आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड कौन सा है, सो दैट इज अवर KClO4। तो एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। ओके जब भी आप टेक्स्ट बुक में से पढ़ो तो बॉक्स कर देना। देखो कुछ थियरीज ऐसी है कि जो फंडामेंटल वो मैंने सिखा दिया आपको, लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ही वन टाइप ऑफ होगा। द सॉल्ट इज नॉट अ वेरी गुड soluble in water, okay 6.4 gram per 100 gram, but when heated it decomposes at 513 Kelvin। तो इसका डिकम्पोजिशन होने के बाद क्या बनता है K2MnO4 and MnO2, फिर से डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया इसका। It has two physical properties of considerable interest: its intense color and its diamagnetism, along with the temperature dependent with paramagnetism। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो थोड़ा थोड़ा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। This can be explained by the use of the molecular orbital theory। चलो वो अभी थियरी हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके एमओ थियरी, वो एमओ डायग्राम ड्रॉ करते थे वही। Just a minute. Okay. Next, the manganate and permanganate ions are tetrahedral। देख लो दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक ही है, एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाता है, देख लो। ओके बाकी इसका 1 माइनस और इसका 1 माइनस, इसका 2 माइनस चार्ज होता है दोनों का शेप से। The pi bonding takes place by overlap of p orbitals by oxygen with the d orbitals of manganese, and the green manganate is a paramagnetic because of one unpaired electron, but the paramanganate is a diamagnetic due to the absence of unpaired electron। Acidified permanganate solution oxidizes। अब यहाँ पे इसका uses दिया है कि अगर C2O4 2 माइनस है उसको CO2 में कन्वर्ट करना है
then MnO4 1 minus is used. Fe2 plus को Fe3 plus में convert करना हो, then it is possible. NO2 1 minus को NO3 1 minus में convert करना है, then it is possible. I minus को I2 में convert करना है, तो फिर it is possible. Full reaction can be written by adding the half reaction for the KMnO4 to the half reaction of the reducing agent, balancing wherever necessary. If we represent the reduction, चलो potentials दे दिए जिससे पता चलता है कौन ज्यादा और कौन कम है. Okay, चलो किसी को बोलते हैं अब रीड करें. Yes, Chaitanya, read this paragraph from here. यहाँ से पढ़ो चलो. Chaitanya, can you hear me? And concentration of the solution plays an important part in the reaction. हाँ. मेरा कंटिन्यूअस आपकी आवाज नहीं आ रही. Okay, no problem. Yes, then तो कौन बचा फिर? Okay, रुतांश, चलो पढ़ लो पहले से. We can very well see that the hydrogen ion concentration of the solution plays an important part in influencing the reaction. Although many reactions can be understood by consideration of redox potential, kinetics of the reaction is also an important factor. Permanganate at H plus is equal to 1 should oxidize water, but in practice the reaction is extremely slow unless either manganese 2 ions are present or the temperature is raised. Okay, चलो कुछ examples यहाँ पे दिए. Just हाँ. अब देखो सब इक्वेशंस आपको लर्न ही करने पड़ेंगे. कोई मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपको बताऊं और लर्न मतलब लिखना स्टार्ट करो हर रोज टिल 10 days कंटिन्यूअस 1 बार लिखो, फिर थोड़े थोड़े बाय हार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, और लिखेंगे तभी आपको लर्न होगा, वरना आपको लर्न नहीं होगा. ये permanganate titration in the presence of HCl are unsatisfactory since the HCl is oxidized to chlorine. मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पॉसिबल नहीं है, ये याद रखना है, एमसीक्यू में पूछते हैं. Besides its use in analytical chemistry, potassium permanganate is used as a favorite oxidant in the preparative organic chemistry. Organic में जब भी ऑक्सीडेशन करना होता है तो फिर यही यूज होता है. It uses for the bleaching of wool, cotton, silk and other textile fibers, and for the decolorization of the oils are also dependent on its strong oxidation power. Okay, चलो अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक. तो एक ऐसा करेंगे, एक लेक्चर में ऐसा लेंगे कि जिसमें सिर्फ फंडामेंटल करेंगे और इसमें इस चैप्टर में जो भी कैंसल्ड है ना उसका हम फंडामेंटल कर देंगे, और जो टॉपिक दिए हैं जो हमारे सिलेबस में है, बोर्ड के सिलेबस में, वो हम लिख के करेंगे, और बाकी सबका सिर्फ फंडामेंटली करेंगे, क्योंकि उसमें तो थियोरी पढ़वाने की भी जरूरत नहीं है. पूरी थियोरी तो पूछेंगे नहीं, लेकिन उसका फंडामेंटल हम साथ में कर देंगे. ओके, तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब यहाँ से तो पूरा का पूरा टॉपिक कैंसल्ड है. ओके, इसके अलावा जो K2CR2 में भी पता है वो भी कैंसल्ड है. ओके, अब इसका कुछ पार्ट जो बाकी बचता है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर करेंगे. ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेक्चर में तो सब बोर्ड की थ्योरी अपनी कंप्लीट हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट 2 सेशंस में. ओके स्टूडेंट्स, तो लेकिन तब तक आपको ये अच्छी तरह से लर्न करना पड़ेगा. ओके, लर्न करेंगे तभी वो आपका ठीक तरह से हो पाएगा. ओके देन, गुड बाय.